So I'm taking the partial derivative of the function f of x y. Here x and y, they are independent variables with respect to x variable. So in this case, we will treat y to be as constant. Constant. Right. So हम another variable को क्या treat करेंगे? Constant. हम partially इससे denote करेंगे delta f delta x. This denotes the partial derivative of the function with respect to x. Complete derivative को d से denote करते हो. Right. Here we are taking the partial. So this is delta Yes, f by delta x. Or we can write this as fx. fx भी यही represent कर रहे हैं. We are taking the partially derivative of this function with respect to x. One and the same thing. Same notations है. This fx represent the partial derivative of this function with respect to x. Now what does it mean? It means that we are changing in a x variable only and y is the constant. Let's suppose we are finding the partial derivative at some point x naught comma y naught. Now in terms of limit, this will be, we are taking h tending to 0. अब ये आपके पास किसी भी वे से हो सकता है, बट देखो चेंज हम ले रहे हैं ओनली इन एक्स वेरिएबल, तो ये आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा डेरिवेटिव. सो वी आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल ओनली. आवर y वेरिएबल इज फिक्स्ड. So this rate of change with respect to x variable only, provided this limit exists, is said to be the partial derivative of the function with respect to x at a point x naught comma y naught. The partial derivative of the function with respect to x at a point x naught comma y naught is this. Is the limit h approaching to 0. Change in only x variable हमने किया, y naught is fixed. तो अगर ये limit आपका exist कर जाता है, then you will say the partial derivative of the function with respect to x at the point x naught y naught exists. And we call this as fx or partial derivative of f curly f upon curly x at a point x naught comma y naught. This is a way to write at a point x naught comma y naught. Right? So since we are taking the derivative with respect to x, so we are taking the change only in x direction. Right? So ये जो आपके पास slope आएगा, this is the slope of the tangent of the function f in I direction. Because इसमें हमने change only x axis के along लिया है. हमारा other variable जो है that is fixed. तो ये function का slope होगा, slope of tangent होगा in I direction at a point x naught comma y naught. पास कोई फंक्शन है, सॉलिड फंक्शन है ये, राइट? तो अगर हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो बेसिकली हमने y नॉट को फिक्स कर लिया है, तो वो मेरा एक प्लेन है y नॉट के उसमें, राइट? और इस पॉइंट पे अगर हम चेंज ओनली इन एक्स उसमें कर रहे हैं, तो आपको जो कर्व जो पास होती होगी इस पॉइंट पर, वो हमने ओनली एक्स डायरेक्शन में उस पर टेंजेंट निकाला है. ओके, ये कोई सॉलिड सरफेस था, हमने इस पॉइंट x नॉट कोमा y नॉट पे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल. तो y नॉट मेरा फिक्स हो गया, y इज इक्वल टू y नॉट जो है वो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस फंक्शन को. ठीक है, इस पॉइंट पे कोई ना कोई कर्व पास कर रही होगी. अगर हम ओनली x एक्सिस ओनली i कैप डायरेक्शन में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, सो दैट डिपिक्ट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट दिस इन अ डायरेक्शन ऑफ i कैप. और यही अगर हम x को फिक्स कर लेते, चेंज करते ओनली इन y, तो वो आपको स्लोप मिलेगी इस पॉइंट पर इन अ डायरेक्शन ऑफ j कैप, और यू कैन से इन अ डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन भी तो चाहिए होगी ना. हाँ, ये देखो, ये आपके पास y और ये x एक्सिस है, right? This is paraboloid z is equal to x square plus y square, right?
अगर मान लो मैं y को फिक्स कर दूं इसमें, y मैंने पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है दैट पॉइंट इज लेट्स सपोज 1,2। ओके, तो 1,2 पे मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, तो चेंज होगा 1 के अकॉर्डिंग, राइट। 2 तो मेरा फिक्स हो गया, तो y इज इक्वल टू जो 2 लाइन है, जो यहाँ पे लाइन 2 कट करेगी, राइट, तो ये कोई ना कोई एक सरफेस बना रही होगी विद x इज इक्वल टू 1, कोई पॉइंट यहाँ पे बनेगा आपके पास पॉइंट कोई 1,2। ओके, अब यस अगर मैम। आप चेंज कर रहे हो ओनली इन x, तो बेसिकली आपने y फिक्स कर दिया। वन वे यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y ओवर, क्योंकि y में तो चेंज हमने करना नहीं, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, ये कोई कर्व है x स्क्वायर प्लस 4 पैराबोला है आपके पास, यस मैम। राइट। अब इस पैराबोला पे हमने 1 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, स्लोप। यस मैम, टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा, बट किस डायरेक्शन में आया, ओनली x में, नेक्स्ट। ठीक है। सिमिलरली इसी में मान लो 1,2 है, अब मुझे डेरिवेटिव पार्शियली निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड मेक इट फिक्स, तो ये मेरा फंक्शन ऑफ y अलोन रह गया, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ओनली एट अ पॉइंट 2। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैंने z से लिखा है इसको dz by dy निकाला, दिस कम्स आउट टू बी 2y, नाउ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी 4, राइट। तो ये जो आ रहा है दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू y एट अ पॉइंट 1,2, क्योंकि x तो मेरा फिक्स हो चुका था, उसमें चेंज नहीं था, फंक्शन मेरा कन्वर्ट हो गया सिंगल में, तो अब y एक्सिस के अलोंग आपको मिलेगा डेरिवेटिव, दोनों पे डिपेंडिंग था वो, तो हम डेरिवेटिव, इसीलिए मैंने अब देखो आपको भी बोला कि अभी हमने कहा है कि ये जो लिमिट है वो सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में नहीं है, लेफ्ट और राइट, इनफाइनेटली मेनी डायरेक्शंस हैं, उनमें से एक डायरेक्शन आपने एक्स एक्सिस अलोंग ली, तो वो आपको स्लोप दे रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, बिकॉज आपने ओनली चेंज किया एक्स वेरिएबल में, वाई को आपने फिक्स कर दिया। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आप यू विल ट्रीट एक्स टू बी कांस्टेंट, तो एक्स आपका फिक्स है, आप ओनली चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये जो लिमिट में अब आप चेंज करोगे ओनली विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल करोगे, तो वो आपको स्लोप देगा फंक्शन की इन जे डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही दो डायरेक्शंस हैं, आप और भी बहुत सारी डायरेक्शंस में निकाल सकते हो, आप इन दोनों के अलोंग भी निकाल सकते हो कि दोनों में चेंज हो, क्योंकि लिमिट तो हमारी दोनों के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, इसीलिए इस केस में हमें कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं पता चल रहा क्या है, that's why we are finding the partially derivative with respect to each independent variable, because there are infinitely many directions जिसमें हम निकाल सकते हैं लिमिट। ये हमने particularly दो directions की बात की, one is the x axis another is the y, so one is with respect to x axis another is the with respect to y, तो एक आपको i डायरेक्शन में स्लोप देगा, दूसरा आपको j डायरेक्शन में स्लोप देगा, पर बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्यूज मी मैम। मैम जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने y फिक्स कर दिया और हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x पे, तो मैम बेसिकली हमने y फिक्स कर दिया, तो बेसिकली वो y वाले प्लेन में अब हम यस यस, वो तो कट मैम जब जो यस मैम, तो हमने दो पॉइंट्स पिक करे x नॉट प्लस h और x नॉट, तो फिर मैम जो स्लोप बनेगी वो y प्लेन में ही बनेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना उसी नहीं, प्लेन उसकी डायरेक्शन हम क्योंकि ओनली आई डायरेक्शन में ही निकाल रहे हैं, वी आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ओनली, वी आर चेंजिंग ओनली इन एक्स वेरिएबल, वी आर नॉट चेंजिंग वाई, तो वो हमारा फिक्स्ड है, सिर्फ एक्स। मैम बट इफ x changes then z will also change ना, because z is x square plus y square, वो तो जैसे डिपेंडिंग है ना इस पे, वो तो चेंज होगा ही होगा। यस मैम, तो फिर वो पॉइंट भी तो चेंज होगा, तो फिर उसकी स्लोप भी तो उसी y प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है ना, हम खाली आ सकती है, बट अगर आप वन पॉइंट फिक्स कर रहे हो तो आपको दो ही डायरेक्शंस मिलेंगी, वन इज द लेफ्ट एंड अदर इज द राइट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही आएगा इफ यू आर फिक्सिंग द पॉइंट वन। बट अगर वन की बजाय आप एक्स ही रखो, फिर उस प्लेन के अंदर y तो आपका फिक्स है ही है, x आपका अब वेरी हो रहा है, अब वन की जगह 1.5 ले लो, 2 ले लो, तो अलग अलग पॉइंट्स पर
सेम y plane में you will have the different slopes at different x. बट अगर आप x को भी एक पर्टिकुलर पुट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आपको मिलेगा स्लोप. ओके यस मैम. वो जो प्लेन सिलेक्ट किया हमने y का, मतलब यहाँ 2 है ना, तो उसी प्लेन में रहेगा ना ये. हाँ. जहाँ पे हमने y को, अगर मान लो मैं y को भी फिक्स ना करती, ये पॉइंट 2 ना होता, फिर वो वेरी कर रहा है. हाँ अब आप y की भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जोन सा प्लेन बनेगा उसमें डेरिवेटिव निकल रहा है. ओके. So now write down the formula for this. Next page पे करती हूँ. What will be the partial derivative of function with respect to y at a point x naught comma y naught? Now tell me what will be this in the form of limit. H approaching to 0. f of x naught y naught x naught plus h minus f of x y naught Divide by h. Provided this limit exist. ये हम क्यों लिख रहे हैं provided this limit exist? Because ये limit की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए और यूनिक आनी चाहिए. एग्जिस्टेंस से मतलब यही है. मींस यहाँ पर हम जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन अगेन वी आर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. बोथ शुड एग्जिस्ट, both are finite value, then we will say this limit exists in j direction at a point x naught comma y naught. So this is the partial derivative of the function with respect to y at x naught comma y naught. Definition part is clear to all of you?